Well, see, at around 10:45, it is expected that this hearing has to start, and shortly it is going to be started. Solicitor General is in the court, and 5 judges will, including Chief Justice of country, they have started, reaching the court. So definitely after some time it is going to be pronounced, and the most awaited, hearing it is because for the people of Jammu and Kashmir and politicians of the Jammu and Kashmir, because we have seen that for last 4 years when it was abrogated, and then these politicians and other people, they went to the court and they were pleading for the restoration of Article 370 and the 35A by saying that this is basically abrogated unconstitutionally. So that was the reason that they are trying to raise this issue and say that injustice was done with the people of Jammu and Kashmir. But Home Minister Amit Shah clearly says that this is nothing but it was done right under the Constitution of India, and there was a provision, and that's why they have done it. And what change has taken place in the Jammu and Kashmir after abrogation of 370, that is the most important thing, because during the hearing, government, from the government side, it was projected in the court that how this thing has happened in the Jammu and Kashmir. Development is taking place, terrorism is declining continuously in the Jammu and Kashmir. That is something which clearly indicates that it was a big hurdle as far as the development is concerned. It was a big hurdle for the forces to restore peace in the Jammu and Kashmir, because what we have seen in the past, that whenever forces they neutralize the terrorists, the number of terrorists that was continuously reviving and increasing. That was a major thing. But now the number of terrorists present in the Jammu and Kashmir, that is very low. So that indicates that what was happening in the Jammu and Kashmir in the recent past, that is something which basically was not happening before the abrogation of 370. So that is the what government have shared in the court. So that is most important thing. I will try to speak to some leaders of the best Pakistani refugees, because they have seen the tough time, because for last so many years those who basically were fighting for their rights, because best Pakistani refugees, the people of one more community like Gorkhas, the people of the Balmiki Samaj, those who were not having rights of citizenship, right, they were basically facing the tough time. We have with us Labaram Gandhi, who is a senior leader of best Pakistani refugee and those who have faced that tough time. Labaram जी, ये बताइए कितना बड़ा दिन है आज, क्योंकि एब्रोगेशन तो हो गई थी, 370 तो हट गया, आपको सिटीजनशिप मिल गई, मगर कोर्ट में आज भी कई लीडर गए थे कि हमें 370 वापस दे दो। देखिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि कल को कश्मीर में इलेक्शन होगा तो हम किस मुंह से उन लोगों के पास जाएंगे, तो वो अपनी रोटियां सेकने के लिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा रहे हैं। जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने धारा 370 और 35 को ख़त्म कर दिया है, तो मेरे ख्याल वो दोबारा कभी नहीं आएगा। आपको क्या लगता है, ये जो पॉलिटिशियन आज गए हैं कोर्ट में और कह रहे हैं कि नहीं इंजस्टिस हुआ है, आपके साथ जो इंजस्टिस था वो क्या था और आज आप क्या समझते हैं? देखिए, इनजस्टिस तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ या वाल्मीकि समाज के साथ हुआ था, साथ में गोरखा समाज के साथ हुआ था। ये लोग पिछले 75 सालों से हिंदुस्तान से उठ के आए थे। अगर देखा जाए तो हम लोग सियालकोट से आए थे, सियालकोट भारत का एक हिस्सा था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर को इन हुक्मरानों ने, कश्मीरी हुक्मरानों ने हिंदुस्तान का कभी हिस्सा नहीं माना। मैं इंडियन आर्मी में था और मैं श्रीनगर में देखता था कि हर दीवार पे ये लिखते थे इंडियन डॉग्स गो बैक, यानी कि ये अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं मानते थे। कहने को ये कहते थे कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन, लेकिन कागजों में ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन आज जब ये 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 ख़त्म हुआ है, जो एक टेम्परेरी प्रोविज़न था, तो आज हम मानते हैं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी इंडिया इज वन। आप क्या लगता है, आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो लीडर्स हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, जो इस फैसले में उम्मीद कर रहे हैं कि 370 वापस आएगा, क्या लगता है वो क्या वजह क्या है उनके पीछे, और आप क्या कहना चाहो कि आज के दिन जो कोर्ट जो फैसला सुनाने वाली है उसको लेकर? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया कि ये जो राजनीतिक दल हैं कश्मीर के, जो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इनकी एक मजबूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कल को हमें कश्मीर में कौन वोटिंग राइट देगा।
वोट डालने के लिए अगर ये किसी के पास जाएंगे तो वो मेरे ख्याल इनकी बात नहीं मानेगा। जब मजबूरी में वहाँ जा रहे हैं कि कल को हम कहेंगे कि हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, लेकिन वहाँ भी हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जो कश्मीर के लोग हैं, आप कश्मीर भी गए होंगे, कश्मीर के लोग सही मायने में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं या दुखी? देखिए, ये सामने दिखाई दे रहा है। आज से 3 साल पहले अगर हम बात करें तो रोज़ सुनने में आता था कि पत्थरबाजी चल रही है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, वहाँ गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन आज 4 साल के बाद हमने ये तो कहीं नहीं सुना कि कहीं पत्थरबाजी हो रही है। इवन के वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के नौजवान हैं, वो आज मानते हैं कि हमने बहुत गलतियाँ की और हमें आज पछताना पड़ रहा है कि हमने गलत काम जो था वो हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस के साथ की है। और हमारे भी एक सवाल जानना चाहूँगा, क्या आप लोग जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सरकारें रहीं, चाहे वो PDP है, कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तब उनके पास गए थे अपनी सिटीजनशिप राइट को लेकर, तब आपको क्या कहते थे? देखिए, हमारी जो संघर्ष था जब हम जहाँ जम्मू कश्मीर में आए तब से शुरू था। इवन कि एक बार हमारे लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की कि अगर ये लोग हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं देंगे तो हम वहीं जाते हैं जहाँ से हम उठ के आए थे। तो मेरा जो अपना टेन्योर था, मैं 2006 में प्रेसिडेंट बना था और तब सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे। वो भी 1947 में ही आए थे जब हम लोग आए थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में चले गए, देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए। हमारी बदकिस्मती ये रही कि हम जम्मू कश्मीर में रुके और हमें जहाँ चटपासी की नौकरी तक नहीं मिली। तो ये एक बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण जो फैसला था। ये लोग क्या कहते थे जब आप इनके पास जाते थे? मैंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी मैं मिला हूँ, तो उनका भी एक ही जवाब था कि अगर हम लोग आप लोगों को सिटीजनशिप राइट दे दें तो कश्मीर वाले मेरी कब्र खो देंगे। तो मैंने उनसे यही गुहार लाई कि आपके वालिदैन ने हमें बैठाया था, इवन कि हम पंजाब की तरफ जा रहे थे, और अगर वालिदैन ने बैठाया तो आपने उनके कहे पे चलना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए, लेकिन वो भी मजबूर थे। उसके बाद मैं स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद साहिद से भी मिला, उनका भी यही था कि ये जो आपका इशू है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज का, क्या लगता था इनको कि अगर आपको सिटीजनशिप राइट देंगे तो इनका जो राजनीति है उस पर फर्क पड़ेगा? कितने लोग हैं आपके जिनको? देखिए, हमारी बदकिस्मती यही रही है कि हमें अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इशू पे हमें इन्होंने बर्बाद किया है। कि इनकी एक मंशा थी कि ये लोग लाखों की तादाद में जम्मू में है, अगर इन लोगों को सिटीजनशिप राइट दे दिया तो वो जम्मू की वोटिंग पावर जो बढ़ेगी, वो इनको नामंजूर था। और जब वोटिंग पावर बढ़ी तो सीटें भी बढ़नी थी। वो ये कहते थे कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी कुर्सी जो है वो चली जाएगी। Just imagine, why, this abrogation was not done, why this 370 was important to the people of Jammu and Kashmir and the country. That is something which clearly indicates, that is what this Labaram Gandhi was saying, because Labaram Gandhi is a leader of West Pakistani refugee, because they are lakhs in number and they were fighting. Whenever they went to the political party like Farooq Abdullah, when they were in the power, they went to the Mufti Muhammad Saeed, they went to Manmohan Singh, but nothing was done. This 370 was the biggest hurdle for them, because they were the citizen of our country, they were citizen of India, but they were not citizen of Jammu and Kashmir, and because of that they were not getting the jobs, they were not getting the land rights in the Jammu and Kashmir. Ajay, some land was given to them. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.